Mahakumbh, an event that transcends faith, history and geography to become one of the greatest spiritual gatherings in the world, officially started today. Said to be the largest religious congregation on earth, Mahakumbh has seen over 1.5 crore devotees taking a holy dip in just one day. But there are also those who want to use the occasion to test the political waters. Samajwadi Party has been continuously taking digs at the BJP government with Kumbh as a pretext. In the latest, Akhilesh Yadav has drawn a bizarre analogy between food and faith, saying that roti comes before religion and that religious things cannot be explained to the poor. This statement came on the heels of another jab, where he said that some people attend the Kumbh to wash their sins. आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे, जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय। अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे, जिसमें समय समय पर मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। And as Akhilesh leads by example, his party's leaders take their attacks on Mahakumbh a notch above. Sunil Sajjan and Afzal Ansari are busy finding faults with expenditure and management, even on the inaugural day of the event. They allege that without presenting any evidence, there is corruption and misappropriation of funds in the name of organizing Kumbh. कुंभ पर सवाल नहीं है, कुंभ के नाम पर जो अव्यवस्था और भ्रष्टाचार है उस पर तो सवाल होगा। कुंभ के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल पाप हो रहा है। इतना जरूर सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। कई लोगों ने ये बातें बताई, चर्चा में ये बात है कि ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए। जहां 10 पैसे की खर्च की जरूरत है, वहां 10,000 खर्च किया गया है और असंतोष व्यक्त किया है कई संतों और महात्माओं ने भी, धर्मगुरुओं ने भी। And while SP leaders go on a fault-finding mission in Lucknow and Prayagraj, the same party's leaders have installed a statue of their founder Mulayam Singh Yadav at a camp in the Mahakumbh Mela area. The statue, about 2 to 3 feet long, was inaugurated by the leader of opposition and SP leader Mata Prasad Pandey. This has irked the BJP, which has cited the checkered past of Mulayam Singh and his party when it comes to Sanatan slander. कुंभ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुंभ सनातनियों का, हिंदू धर्म के करोड़ों लोगों का आस्था का विषय है। और हमारे एक साथी ने कुंभ में नेताजी की मूर्ति लगाई है, एक कुटिया बना करके, क्योंकि नेताजी पर भी करोड़ों लोगों की आस्था है। नेताजी सामाजिक संत थे, खास तौर से पिछड़े और दलितों की उन पर आस्था है। तो आस्था के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। उस पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। Mr. Akhilesh Yadav is a senior political person. If he does not subscribe to the Mahakumbh, if he does not wish to take a holy dip, that is his choice. But crores and crores of people, a large part of India's population is going to be there. It's the largest congregation on earth. Are you going to run down their faith, their belief, and try to do politics on the shoulders of such an important Sanatan Dharma event?
I mean, this is just not acceptable. You are entitled to do your politics. Why are you dragging Sanatan Dharma into that? Let's go across to our guest now. Joining us is Anila Singh, spokesperson of the BJP. We have Yati Ma Chetanand Saraswati, Hindu religious leader. We also have Dr. Sudha Mishra, leader of the Congress party. But my first question goes across to Professor Bhuvan Bhaskar Joshi, who's the national spokesperson of Samajwadi Party. Dr. Bhuvan Bhaskar Joshi, आपने अभी देखा होगा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं नलिन कोहली, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपकी अपनी आस्था है, यदि आप जाना चाहें नहीं जाना चाहें, लेकिन जो जा रहे हैं इस तरह उनका क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है, इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, आज के सोशल टाइम में बहुत सारे चित्र ऐसे हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने डुबकी लगाई थी, चाहे वो हरिद्वार हो चाहे महाकुंभ हो। और हमारा मानना है कि ये देश सेकुलर देश है जिसमें हिंदू लोगों को भी अपनी मान्यता के आधार पे धर्म की पूजा करने का अधिकार है, और हम लोगों को ये चिंता नहीं है। हमारी चिंता उन टैक्स पेयर का पैसा है, क्योंकि जो महाकुंभ हो रहा है वो आपके, हमारे और करोड़ों लोगों का टैक्स पेयर्स है, कि कहीं वो भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोनी के विधायक, जो कह रहे हैं कि सरकार जो डूबी हुई है वो भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। इन्हीं के जो साथी हैं आशीष पटेल, वो अपना दल वाले, वो क्या कह रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि पूरी सरकार बट अगर इस तरह से कुछ करप्शन के अगर किसी के पास प्रमाण है, सबूत है, तो सामने लाइए। ये आरोपों के आधार पे अब थोड़ी किसी सरकार को पूरी तरह से करप्ट कह सकते हैं। कुछ प्रूफ लाइए अगर इस तरह का कुछ है, कोई अगर पास डॉक्यूमेंट हो या कुछ और चीज हो आपके सामने। देखिए, जो ये बात बताई मैंने आपको, जिनको मैंने कोट करा, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है या उनके साथी हैं। वो क्यों कह रहे हैं, पहला विषय। और मुख्य विपक्षी दल होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि आपका, हमारा और 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सही जगह इस्तेमाल हो। हम लोग खुद महाकुंभ को मानते हैं, हमारी धार्मिक मान्यता है। ओके, अनिला सिंह जवाब दीजिए। आपके पार्टी के नेता हैं जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दैट्स अ चार्ज कमिंग फ्रॉम एसपी स्पोक्सपर्सन। ही आल्सो सेज दैट वन ऑफ योर अलायंस पार्टनर्स इज आल्सो मेकिंग अ सिमिलर क्लेम। दैट्स व्हाई being the principal opposition party in UP, it is our duty to raise this issue, he says. Respond to him, please. Anila Singh. My Ram to all. I need to understand that Samajwadi Party, does this party has got its own brains, or he just this party simply copies people of other political parties or anybody from the society? If they have got their own brains, then they should use it. And secondly, I really appreciate that you are worrying for the hard taxpayers' money, and you should. And as Madhav said, that if you have got any sort of evidence where you find कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और ठेकेदारों के माध्यम से अधिकारी या कोई भी नेता अपना फायदा उठा रहा है, तो कृपया करके वो एविडेंस को, उस सबूत को लेकर आइए। सजा मिलनी चाहिए। हम भी ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, क्योंकि ये योगी की सरकार है। ये वो योगी है जिसने महाकुंभ को अपना एक खुद का उत्सव बनाकर एक एक व्यक्ति, एक एक साधु संत जो उस महाकुंभ में आ रहा है उनसे जुड़ा हुआ महसूस करे, उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। एक अखाड़े में जाकर एक एक साधु संत से मिलकर लोग। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता साथी है अनिला सिंह जी को बताना चाहता हूँ, मैं अनिला सिंह जी को बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का कोई अपना नहीं होता, उनका सबका अपना होता है। उनका अपना कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री है, वो पूरे प्रदेश 25 करोड़ के लोगों का नेतृत्व करते हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, संविधान को पढ़ लीजिए। दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, और 50,000 गाय कटने का आरोप कौन लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे? लोनी के विधायक लगा रहे हैं। आपके 50,000, ये कैसी सरकार चल रही है जो 50,000 गाय रोज कट रही है? ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोनी के विधायक कह रहे हैं। आप बताइए किस तरह की सरकार चल रही है? ओके, अनिला सिंह, quick response. If this man is going to sit here in the studio and shout over me, it won't be possible for me to debate. I have a bad throat. I can't shout over him. It was my turn. I was questioning you. I am questioning. I am not shouting. I am questioning you. Okay, जवाब दीजिए. Anila Singh, your turn to speak. You are shouting and you are ill-mannered. No, please, एक second, Professor, one second. Let me come in now, Professor Bhuvan Bhaskar. Anila Singh, quickly respond, please. The other panelists who have not yet spoken. I just want to say, just now, this man has shows the character of the Samajwadi Party.
I know the They don't character of have One BJP. second, one second, one second, please. I know the character of BJP. One second, please. I We know cannot the have a character debate. of No, no, we BJP. cannot have a debate like this. This is not Brijbhushan fair. Singh is This is character not. of One BJP. second, one second, Professor Bhuvan Bhaskar. You have had your say. Sir, you have had your say. Now let her make her point. No personal comments, please. Anla Singh, respond quickly, please. No. I have talked about the Samajwadi Party and its characteristic, and let me tell you here, whole of the world is appreciating the largest congregation in the world today, that how everything is being managed. यहाँ पर अभी तक 2 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। हर व्यक्ति जो वहां आ रहा है भोजन भी कर रहा है, नृत्य भी कर रहा है। किस प्रकार से इतना पूरा इंतजाम हो जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत अद्वितीय है। पूरी दुनिया इससे आश्चर्यचकित है। परंतु परेशान कौन? परेशान है समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी है और इनको लग रहा है कि जो जातियों में पूरे समाज को डिवाइड करते थे। माधव, लेट मी कंप्लीट, आई जस्ट टेक 5 सेकेंड्स। आज उसी महाकुंभ में आकर चाहे व्यक्ति कोई भी जाति का हो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर कोई व्यक्ति किसी भी समाज से, किसी भी जाति से आ रहा हो, वो भी डुबकी लगा रहा है उसी जल में। सनातन एक है, उसका एक उदाहरण हम देखने को मिल रहा है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, इसीलिए परेशान। आई वांट डॉक्टर सुधा मिश्रा टू कमेंट। डॉक्टर सुधा मिश्रा, कहीं ना कहीं अगर हम महाकुंभ की अगर बात करते हैं, उसी वक्त हम ये कहते हैं कि रोटरी शुड बी बिफोर रिलीजन, इस तरह के कोट्स, और खास तौर से जो मुलायम सिंह यादव की जो वहां पे प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया है, क्या ये उचित है? माधव जी, सबसे पहले जिस महाकुंभ की बात हो रही है, 144 वर्ष के बाद पूर्ण महाकुंभ है, तो जितने लोग बैठे हुए हैं कोई भी उस समय नहीं रहा होगा जब ये लगा होगा। 12 वर्ष बाद आया है। इसके पहले 2013 में महाकुंभ लगा हुआ था। तो जिन सरकारों को ये लग रहा है कि वो अपना समायोजन कर रहे हैं या उनका आयोजन बहुत बृहद है, वो जाके तथ्यात्मक रूप से देख लें कि उस नगरी में, उस संगम की नगरी में हमेशा जब अर्ध कुंभ हो, कुंभ हो, वहां पे लोग ऐसे ही आते हैं, डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, अपने भक्ति को जो उनको प्राप्त करना है, जिस भी आधार पे वो आए हों, वो प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ नया नहीं है। पहली बात, भारतीयता और सनातन की बात करने वाले जो आज बात कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आज पहली बार हो रहा है, तो उनको तथ्यात्मक रूप से जाके 2013 के समस्त जो तथ्य है दे दीजिए। इसके पहले हरिद्वार में लगा हुआ था, आपने वो भी जाना होगा 2020 में। तो तथ्यात्मक रूप से हमारे देश में जब से 850 वर्ष जब से पहले से चल रहा है, शंकराचार्य जी ने स्टार्ट किया था, तब से सनातन भारतीयता, धार्मिक आस्था चोटिल नहीं हुई, आहत नहीं हुई। अचानक 10 वर्षों में क्या हुआ कि लोगों की आस्थाएं आहत होने लगी। ऐसे ही राजनीति वाले जो राजनीति कर रहे हैं धर्म पे, वो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिनकी राजनीति का आधार धर्म है, जो हमारे टैक्स पे हमसे पैसा लेके उस राजनीति को धर्म की आड़ में अपना बना रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति ना करें। हम राजनीति में धर्म लाते हैं। हम जानते हैं कि इस देश को जरूरत है। Let me bring in also यतिमा चेतनानंद सरस्वती महंत। Let me also bring her in. यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, उसका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि जो लोग जिनकी राजनीति का आधार ही धर्म है, वो इस तरह के सवाल ना उठाए। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं सुधा मिश्रा जी को एक बात बताना चाहती हूँ। सुधा मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि कुंभ का इतिहास जानना असंभव है। ये वर्षों वर्षों तक लगता चला आ रहा है और 144 वर्ष बाद तो अब लग रहा है महाकुंभ। हम शायद अपने जीवन काल में एक ही बार स्नान कर पाएंगे। तो सुधा मिश्रा जी, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन और इसमें सरकार ने कहीं ये कहा भी नहीं है, योगी जी ने कहीं भी ये क्लेम नहीं किया है कि हम कुछ नया कर रहे हैं। उन्होंने उस व्यवस्था को जो 2013 में जिस तरीके से आजम खां को, जो इस रिलीजन को जानते नहीं है, जो हमारे सनातन में विश्वास नहीं रखते थे, जिनको सनातनी परंपराओं में विश्वास नहीं था, उनको जिम्मेदारी दी और परिणाम ये हुआ। गलत बयान दे रही है, गलत बयान दे रही है। एक सेकंड, उनको जवाब तो दीजिए। एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, 1 सेकंड। पे हमला कर रही हैं आप। अव्यवस्था की, सर अव्यवस्था की बात कर रहे हैं। 1 सेकंड प्रोफेसर जोशी, नो। एक सफल कुंभ हमने कराया, ये गलत पूछा दे रही है सर। सीएजी रिपोर्ट भी है, उनको बोलने तो दीजिए सर। ऐसे नहीं हो सकता। सनातन को वो जो व्यक्ति सनातन परंपराओं को जानता ही नहीं था, वो आकलन ही नहीं कर पाया कि किस तरीके की भीड़ और किस तरीके का जन आस्था का सैलाब वहां उमड़ेगा। इसलिए वहां 35 लोग रेलवे स्टेशन पर मारे
गए, स्टेशन पे मारे गए। आप बताइए, कुंभ में मारे गए, स्टेशन पे मारे गए, गलत जानकारी देकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। नहीं, प्रोफेसर जोशी, सीएजी रिपोर्ट भी है और सीएजी रिपोर्ट बहुत क्लियर है कि फाइनेंशियल क्वेश्चंस है, जो रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाने थे वो नहीं किए गए। बहुत सारे सवाल हैं सर 2013 की कुंभ पे, आप इसको ऐसे हल्के में मत लीजिए। सरकार कार्रवाई करे तो कार्रवाई कर सर, वो अलग बात है, लेकिन इनको ये सवाल जो उठाएंगे सर, आप इनके प्रोफेसर जोशी जी, आप इनके सवाल पे, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, उनको भी पूरा अधिकार है कि आपके सरकार के कार्यकाल पे सवाल उठाए। तो इस तरह डिबेट मत करिए प्रोफेसर जोशी। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। यू कैन नॉट डोमिनेट द डिबेट, लेट अदर्स कम इन। प्लीज कंटिन्यू योर पॉइंट, चेतन सरस्वती जी। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट ये बता देना चाहती हूँ कि योगी जी ने जिस तरीके से सहभागिता दिखाई है, इससे पूर्व में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कुंभ तो हर बार लगा, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था इस बार की गई है वो देखते बनती है। पूरा विश्व देख रहा है, ये पूरे विश्व के लिए अचंभित करने वाला पर्व है और ये साधुओं का पर्व है, ये संतों का पर्व है। सुधा मिश्रा, इस स्केल पे कभी ऑर्गेनाइज किया नहीं गया और 2013 में हमने देखा था किस तरह की व्यवस्था थी। जवाब दीजिए अब इनका। माधव जी, आप कहेंगे कि 2003 में आपके पास मोबाइल नहीं था स्टैंडर्ड आईफोन का, कैसे हो जाएगा? मतलब आप लोग जब बातें करते हैं टेलीफोन, मोबाइल और उसका आगे बढ़ना, विकास हम करते हैं तो आगे बढ़ा, कहोगे नहीं 76 में टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, ऐसे मतलब बिना किसी तर्क पे आप बातें करेंगे तो सच में आप बात नहीं कर रहे हैं। सुधा मिश्रा जी, मेरे को टेलीफोन और मोबाइल का तो नहीं पता, लेकिन एक सीएजी रिपोर्ट का जरूर मालूम है और वो पब्लिक डोमेन में है, वो सीएजी रिपोर्ट 2013 की, आपने भी शायद पढ़ी होगी। माधव जी, मैं आ रही हूँ। माधव जी, जो धर्म है ना, हर व्यक्ति का, वो किसी भी धर्म का हो, सबकी आस्थाएं बराबर होती हैं, धर्म अलग होते हैं। तो धारेते इति धर्म, अगर हमारी मैम जो सुन रही हैं, अगर वो इस बात को सच में महसूस करेंगी तो धर्म जो महसूस करता है वो कभी किसी और धर्म के बारे में बुरा कह नहीं सकता। ये मेरे धर्म ने सिखाया है, मेरे सनातन धर्म ने सिखाया है कि मैं विनम्र रहूं अपने धर्म के लिए, साथ ही दूसरों के लिए। और कुंभ में मैंने हर साल देखा है, मैं वही की पढ़ी बड़ी हूं, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, तो मुझसे बेहतर कुंभ को कौन जानेगा? 10 साल मैंने व्यतीत किया है, तो प्रयागराज, इलाहाबाद, कुंभ, संगम, उस पूरी नगरी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। मैं जानती हूं कि जो हमारे बुजुर्ग नहीं कर पाए, हमारा उत्तरदायित्व हम कर पाए, लेकिन उनको दोषी बना के हम दिखाएं हम अच्छा कर रहे हैं, ये राजनीति में अच्छा नहीं है। क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम चेतनानंद सरस्वती जी, ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। तब मंजिला बड़ा होता है, सीधे आप 7 मंजिले पे नहीं जाते हैं। विनम्र रहना बहुत जरूरी है, दूसरे धर्मों के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। चेतनानंद सरस्वती, जवाब दीजिए। सुधा जी, हमने तो वो भी सुना है इस देश में जब मजहब के नाम पर लोग सर्तन से जुदा के नारे बुलंद करते हैं, और हमने कुंभ में वो भी देखा है जब 35 लोग मारे गए। आजम खान जी व्यवस्था नहीं कर पाए थे, उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी। सुनिए सुधा जी, सत्य को स्वीकार करने से बात आगे बढ़ती है। रेलवे किसके अंतर्गत आता है मैडम, बताइए? रेलवे भारत सरकार के अंतर्गत। मिस्टर जोशी ये सवाल उठा रहे हैं, प्रदेश सरकार का मामला है, रेलवे जो है केंद्र सरकार का मामला है, ये गलत दिशा दे रही है डिबेट को। ओके, लेट्स लीव इट देयर। अनिला सिंह, Chetan Saraswati, Dr. Sudha Mishra, as well as Professor Bhuvan Bhaskar Joshi, will have to leave it there. Unfortunately, like on the day one of the Kumbh itself, we are looking at this kind of politics, but perhaps that's the way it's going to be for the next month and a half as long as the Kumbh Mela is underway. Thanks so much for joining us this evening.